وادی میں گھر گھر نزلہ زکام اور بخار پر بولے ڈاکٹر نثار الحسن، کہا لگتا ہے پینڈیمک کا اختتام اومیکرون سے ہی ہو سکتا ہے۔ بیشتر آبادی کووڈ مثبت ہونے کے بتائے آثار، کہا لگتا ہے پینڈیمک کا قدرتی علاج ہو ہی جائے گا۔ پی ڈی پی میں بھاگے لیڈران کی واپسی سے متعلق محبوبہ کے بیان پر بولے یاسر رشید، کہا جس نے واپسی کی خواہش ظاہر کی، کیا پی ڈی پی ان کے نام جاری کرے گی؟ محبوبہ کے بیان کو ڈیمیج کنٹرول سے کیا تعبیر۔ کئی دن رامبن میں جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ڈھونڈنے کے بعد 3 شہریوں کی لاشیں لکھنؤ سے ہوئی برآمد۔ ایک ہی شخص نے والدین اور بھائی کا کیا ٹرپل مرڈر، پولیس نے کی معاملے کی تصدیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہاجری کے ساتھ۔ دوپہر کے 4:02 ہوا چاہتے ہیں اور آج کے اسپیشل رپورٹ میں مختلف خبریں ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر نثار الحسن نے پینڈیمک کو لے کر کیا کچھ کہا ہے، کیا اس کا اب قدرتی علاج نکل آیا ہے، کیا اس طرح کی رائے باقی ایکسپرٹس بھی رکھتے ہیں، اس بلٹن کے ذریعے یا اس نشریات کے ذریعے اس حوالے سے مفصل جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ گھر گھر ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر نزلہ زکام بخار جو ہے اب عام ہو چکا ہے۔ کشمیر کا کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں پر اب یہ بیماری نزلہ زکام اور بخار نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے عام لوگ اس نزلہ زکام اور بخار سے کافی پریشان ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وادی کے اندر جہاں کووڈ 19 پازیٹیو کیسز کی تعداد بھی لگاتار بڑھ رہی ہے، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر اور خاص طور پر وادی کشمیر کے اندر یہ گراف بڑھنے سے اب گھر گھر جو ہے نزلہ زکام اور بخار بھی ہے۔ لیکن کیا یہ کوئی کامن کولڈ ہے یا کوئی دوسری بیماری ہے، یا کہ پھر اسے وائرس کے ساتھ ہی یعنی کووڈ 19 کے ساتھ ہی جوڑا جا سکتا ہے؟ اس پر ہم ڈاکٹرز کی جو رائے ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ اس میں زیادہ تر چانسز ہے کہ یہ اومیکرون ہی ہے جو اب گھر گھر پہنچ چکا ہے، اور ڈاکٹر نثار الحسن کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب اس سے کہیں نہ کہیں راحت بھی مل سکتی ہے، کیونکہ جو اومیکرون ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ مائلڈ ہیں اور زیادہ تر لوگ ہوم آئسولیشن میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی بات کی ہے، شہری سری نگر کے اندر ہو یا گاؤں دیہات ہو، کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری ٹیموں نے بھی بات کی ہے اور لوگوں سے پوچھا، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں اس سے پہلے بھی سرما کے اندر ونٹرز کے اندر ہوا کرتی تھی، سردیوں کے اندر اس سے پہلے بھی نزلہ زکام ہوا کرتا تھا، لیکن یہ نوعیت اس قدر پہنچ جائے گی کہ اب گھر گھر نزلہ زکام ہوگا، ہر شخص اب بیمار ہوگا، یہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ عام لوگوں سے بات کرنے کے بعد ہماری ٹیموں نے جو فوٹیج یا جو ویڈیو ساؤنڈ بائٹس ہم تک پہنچائی ہے وہ ہم پہلے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آج کل کے جو دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں بیمار پائے جاتے ہیں، پہلے بھی ہوتی تھی بیماریاں لیکن اتنے حد تک بیماریاں نہیں ہوتی تھی۔ آج کل دیکھیے اب ہمارا جو ہے ماحول بگڑ گیا ہے، یہاں پہ جو ہمارے جنگلات تھے ان کا صفایا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے پولوشن بڑھ گیا۔ گاڑیاں بھی پہلے اتنی نہیں تھی، آج کل اسکوٹی بائکیں گاڑیاں ہر جگہ ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ماحولیاتی جو توازن ہے وہ بگڑ گیا، بیماریاں بڑھنے لگی۔ اگر آپ آج کے دور کی بات آپ کریں گے تو آپ شوپین ضلع کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ کووڈ کی حد تک کم ہے، جہاں پہ آپ کو سری نگر پہ روزانہ ہزاروں کیس نکل رہے ہیں تو شوپین میں آپ کو 8 سے 10 ہی کیس نکل رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ ہریالی ہے۔ تو جو ہم نے خود انسان نے ماحول بگاڑا ہے، تو کسی حد تک تو کووڈ بھی ذمہ داری ہے، ایک عالمی پینڈیمک ہے، عالمی وبا ہے، تو لیکن ہم خود بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ دیکھیے اس وقت ہر گھر میں بیماریاں آخر کیوں ہیں؟ اس پہ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آپ جائیں ہر جگہ لوگ اس وقت فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کرن نگر میں جائیں وہاں پہ کتنے آپ کو ریسٹورینٹ ملیں گے فاسٹ فوڈ کے، لوگ کھا رہے ہیں، ان پہ آپ کو دیکھیے کتنے اسپائسی کھانا لوگ کھا رہے ہیں، ان کی وجہ کووڈ آیا ہے تب سے اس چیز کو لوگ کافی سیریسلی لینے لگے ہیں، اور کافی ڈر بھی لوگوں کے ذہن میں بیٹھتا ہے جب اس قسم کے سمٹمز ان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس چیزوں کو روکا جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے یہ سب یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کتنی ڈیفارسٹریشن یہاں پہ ہو گئی ہے، آپ دیکھیے چیزوں میں کتنی ملاوٹ آئی ہے،
آپ 10 سال یا 12 سال پہلے کی بات کریں گے, آپ ایک سمپل سا کوئی آئٹم کھانے پینے کا اٹھائیے اور 10 سال پہلے آج وہی سیم آئٹم اٹھائیے, آپ دیکھیے کتنی فرق ہے. آپ کوانٹٹی میں بھی فرق دیکھیں گے, آپ کوالٹی میں بھی فرق. آپ کوانٹٹی تو آپ برداشت کر لیں گے, لیکن جب کوالٹی کی بات آ جاتی ہے تو خود ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ملاوٹ, کتنا اس میں کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کیمیکل اور اس ملاوٹ کی وجہ سے انسان کی جو کووڈ آیا ہے تب سے زکام گوڑ پہ آسان, یہ گوڑ پہ وہ گو 2019 پہ وہ نو درو کووڈ تو ام پہ درائے واریاہ ات اومکران درو ہنٹا درو باقی چیز واریاہ ماحول تو گو نا خراب, ماحولیاتی کوئی خراب, مطلب کُلۍ ژٹان جنگل لٹٲیِکھ بیٚیہِ یِم واریاہ أنِکھ یِم واریاہ کُلۍ ییٚتہِ یِم نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ آیہِ یِم مطلب یہِ روٗسی آو اَمہِ سۭتۍ تہِ وَژھٕ واریاہ بٮ۪مارِ ییٚتہِ. بیٚیہِ چھِ لُکھ تہِ چھِنہٕ احتیاط کران تیوٗت, لُکن مطلب ژھۄٹھ چھُ وٕنکٮ۪نس. چلے پبلک کا ریئیکشن آپ نے دیکھا. پبلک کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے بھی بیماریاں ہوا کرتی تھی, اور خاص طور پر جب سرما یعنی سردیوں کا جو یہ مہینے ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ کافی بیمار ہو جاتے تھے, لیکن تب قہوہ پیتے تھے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن آج جب تک نہ انسان ڈولو لے گا تب تک کوئی ٹھیک بھی نہیں ہو جاتا ہے. یعنی جو بیماریاں ہیں یہ بھی بڑھ گئی ہیں, اور بیماریوں کے اندر جو شدت تھی وہ بھی بڑھ گئی ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سال 2019 کے بعد سے یا 20 کے بعد سے جس طرح سے کووڈ کا گراف بڑھ گیا ہے تب اسے عام نزلہ زکام بھی نہیں تصور کیا جاتا ہے. یہ پبلک کا کہنا ہے جو الگ الگ علاقوں سے ہم نے لوگوں کے ساتھ بات کی. لیکن لوگ ان بیماریوں کے لیے اور بھی چیزوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, جیسے ماحولیات خراب ہو گیا ہے یا انسان کا کھان پان جو بدل چکا ہے. ان کا ماننا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں وجوہات ہیں, لیکن اصل وجوہات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحبان ہی کہہ سکتے ہیں. اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا یہ نزلہ زکام جو ہے یہ کوئی عام نزلہ زکام نہیں ہے, یہ روایتی نزلہ زکام نہیں ہے, لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو کووڈ 19 کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. اور یہی سوال جب ہم نے ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر یا نثار الحسن جو کہ ایک پینڈیمک ایکسپرٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سری نگر کے میڈیکل کالج کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر بھی وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جب ہم نے یہ معاملہ اٹھایا اور ان سے بھی پوچھا ہم نے کہ آج کے ڈیٹ کے اندر جو گھر گھر نزلہ زکام ہے یہ اصل میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کووڈ ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اب ہر کسی انڈیویجول کو یہ تسلیم کرنا چاہے کہ جو اومیکران ہے وہ اب ہر جگہ پھیل چکا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اومیکران ہے اس میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ یہ زیادہ اثردار نہیں ہے, یعنی اس کے جو اثرات ہیں وہ مائلڈ ہیں, تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ زیادہ بیمار بھی نہیں ہو جاتے ہیں, یعنی سیویرٹی ان کی زیادہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک اہم بات یہاں پر بتائی, انہوں نے کہا کہ ہر کوئی وائرس بعد میں جب اس کی میوٹیشن 2 سے یا 3 سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد تھکاوٹ آ جاتی ہے, وہ تھک جاتا ہے اور اس میں وہ اثر نہیں رہتا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں ایک طرف ویکسینیشن بھی اس کے لیے ذمہ دار کہی جا سکتی ہے کہ ویکسینیشن سے بھی جو اثرات ہیں وہ کم ہوئے ہیں, لیکن وہیں پر انہوں نے کہا, یعنی نثار الحسن نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ یہ قدرت کی جانب سے اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے, اور یہ تبدیلی عوام کے موافق ہے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے, یعنی ڈاکٹر نثار الحسن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس وائرس کو پروردگار نے یعنی اوپر والے نے پینڈیمک کے خاتمے کے لیے تو نہیں بھیجا, یعنی یہ جو اب اومیکران کی جو میوٹیشن ہوئی ہیں کہیں یہ پروردگار کی جانب سے ہی تو نہیں ہے کہ اب اس کا مکمل طور پر اس پینڈیمک کا, اس وبائی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری آبادی میں اب آ گیا ہے اور لوگوں کے اندر امیونٹی بھی اس سے بڑھ جائے گی. نثار الحسن نے کیا کچھ کہا ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں. یہ کووڈ 19 ہی ہے اور اومیکرون کے حوالے سے یہ اومیکرون ہی ہے. اومیکرون جو ہے ابھی تک کا سب سے انفیکشس ویریئنٹ ہے, تو اسی لیے اس نے پوری پاپولیشنز کو اپنے گرفت میں لیا ہے. آئی تھنک ابھی آپ جو بھی دیکھتے ہو سور تھروٹ جس کو بھی ہے, کھانسی ہے, وہ اومیکرون ہے کیونکہ یہ مائلڈ ویریئنٹ ہے امنگ آل ویریئنٹس. اگر یہ انفیکشس ہے لیکن بڑا معمولی سا ویریئنٹ ہے, جس طرح سے ہم نے باقی ویریئنٹس کو دیکھا, ڈیلٹا ویریئنٹ کو جس نے پاپولیشنس کو ڈیواسٹیٹ کیا, ڈیتھس ہوئی, ہسپتالوں میں جگہ بھی نہیں تھی, آئی سی یوز میں جگہ بھی نہیں تھی. اس حوالے سے اومیکرون بڑا ہی مائلڈ وائرس ہے. اگر پروردگار نے مجھے لگتا ہے کووڈ 19 کو بھیجا
लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इसको कम्बैट करने में मुझे लगता है कहीं न कहीं अभी जूझ ही रही थी और हमको पता भी नहीं चलता था कि कैसे हम इसको कम्बैट करें। शायद परवरदिगार ने हमको इसमें हमको हमारी सुनी और ओमिक्रॉन दिया। मुझे लगता है ओमिक्रॉन की वजह से ही ये पैंडेमिक का खात्मा होगा और जिस तेजी से ये फैलता है पूरी पॉपुलेशन में, मुझे लगता है कहीं न कहीं इट हैज नॉट स्पेयर्ड एनीबडी। अगर आप कश्मीर के हवाले से भी देखोगे, इट इज अक्रॉस द पॉपुलेशन, कोई बचा नहीं है इससे, लेकिन इट हैज हैपेंड इन द गुड ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के हित में है ओमिक्रॉन। परवरदिगार की तरफ से एक वैक्सीन आ गया है और कहीं ना कहीं इसी ओमिक्रॉन की वजह से ही इस पैंडेमिक का खात्मा होगा। आपने देखा होगा बाकी मुल्कों में भी, साउथ अफ्रीका में, बाकी मुल्कों में भी और हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में भी अब इसका पीक आ गया वहां पे। लेकिन कश्मीर के हवाले से मुझे लगता है कहीं न कहीं कि एक हफ्ता बाद ये आएगा। आफ्टर दिल्ली एंड महाराष्ट्र विच हैज बिगन इट्स पीक, वहां डिक्लाइन भी शुरू हो गया है और कश्मीर के हवाले से 1-2 हफ्ते के बाद इट विल हैव अ डिक्लाइन एंड इन अ वेरी फास्ट वे। तो नेक्स्ट जो होगा मंथ, आई थिंक वी विल सी एन एंड टू दिस वेव एंड विल सी एन एंड टू दिस पैंडेमिक ऑल्सो। ओमिक्रॉन के हवाले से बार बार यही कहा है कि इट विल नॉट स्पेयर एनीबडी। केस काउंटिंग का अब कोई रिलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्टेड है, चाहे आपके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं नहीं आते, क्योंकि खासा तादाद जो है उनके वो टेस्ट नहीं करते हैं और जिनके टेस्ट भी अगर नेगेटिव भी होते हैं वो फॉल्स नेगेटिव है। सो इट्स ऑल ओमिक्रॉन। सो यू कैन नॉट टेल पीपल लैक्स ऑफ पीपल हैव गॉट इन्फेक्टेड। इट विल क्रिएट अ फेयर, इट विल क्रिएट अ पैनिक। हमें फोकस करना है बेसिकली अस्पतालों में। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद बढ़ रही है ओमिक्रॉन के हवाले से, जो नहीं है ओमिक्रॉन के हवाले से, कोई पेशेंट है अगर एडमिट है, हमारे कोविड हॉस्पिटल है, आप देख लो वहां पे कुछ ही लोग हैं जो सीवियर पेशेंट है, जो 250 के बेड से वहां पे, और बाकी अस्पतालों में हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद नहीं बढ़ी और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कहता नाज़रीन, 2-3 चीजें डॉक्टर निसारुल हसन जो कि डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट है और पैंडेमिक एक्सपर्ट भी है, उनका दावा है कि जो ओमिक्रॉन जिस लेवल से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है उस नवियत से नहीं लग रहा है कि जो बेड ऑक्यूपेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर है या वहां पर जो पेशेंट्स की भर्ती है वो उसके मुकाबले में निहायत कम है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस ओमिक्रॉन के जो असरात है वो बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये भी कहना है कि जहां बाकी स्टेट्स के अंदर अभी कोविड या ओमिक्रॉन की जो पीक लहर चल रही है, पीक टाइम चल रहा है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये पीक टाइम फरवरी का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता हो सकता है। लेकिन उनका ये भी दावा है और ये कुछ एक्सपर्ट या कुछ मुख्तलिफ माहिरीन के साथ बात करने के बाद ही डॉक्टर निसारुल हसन का मानना है कि उनकी ये राय है कि आने वाले महीनों में ये पैंडेमिक खत्म हो सकता है और बड़ी तेजी के साथ इसमें डिक्लाइन आ सकता है। जिस तरह आज इसमें बड़ी तेजी के साथ शिद्दत देखी जा रही केसेस के अंदर, वहीं पर 2 माह के बाद इसमें डिक्लाइन आ सकता है। और तीसरी बात उनकी ये भी कहना है कि हर वायरस में फिर कमजोरी आ जाती है जब उसमें 2-3 बार म्यूटेशन हो जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये कुदरत की जानिब से ही एक वैक्सीन हो सकता है कि अब शायद ये पैंडेमिक का खात्मा हो सकता है। हालांकि हर कोई इंसान दस्तबदुआ है, हर कोई सरकार दस्तबदुआ है कि इस पैंडेमिक का खात्मा होना चाहिए, आम जिंदगी मामूल की तरह चलनी चाहिए। हर कोई इस चीज के लिए दुआ गो है और हर कोई इस चीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है कि ये पैंडेमिक खत्म होना चाहिए ताकि बाकी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक चलते। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये एक्सपर्ट्स की राय है। इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की राय आई है और इस हवाले से डॉक्टर निसारुल हसन का यह भी मानना है कि ये राय अब नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पर बन रही है कि ये पैंडेमिक का आखिरी हिस्सा होगा और इससे फिर पूरी दुनिया के लोगों को नजात मिल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर में हम बात करते हैं सियासत की। और आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया। जम्मू के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनकी पार्टी से कुछ लीडरान भागे थे, चले गए थे, बागी बने थे, अब वो दोबारा उनकी पार्टी में आना चाहते हैं।
लेकिन उनके लिए पार्टी ने दरवाजे बंद किए हैं और पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए एक उसूल बनाया है। लेकिन उसी पर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर और पीडीपी से बागी लीडर यासिर रेशी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। यासिर रेशी ने कहा कि जहां महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस तरह का दावा किया गया तो वहीं पर क्या महबूबा मुफ्ती ये कह सकती है कि किसने पीडीपी में वापसी की दरख्वास्त की, तो महबूबा मुफ्ती क्या उनके नाम जारी करेगी? एक सवाल या निशान उन्होंने महबूबा मुफ्ती के उस बयानिया पर लगाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं और जिसमें महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि वो फिर से पार्टी को अप्रोच कर रही है। तो इस वजह से अब यासिर रेशी ने कहा कि क्या पीडीपी ये बता सकती है या महबूबा मुफ्ती ये बता सकती है कि किन लीडरान ने उन्हें अप्रोच किया और किस सूरत में अप्रोच किया। ये यासिर रेशी का यहां से रद्द-ए-अमल में सवाल आया है और यासिर रेशी का कहना है कि ऐसा जो है सिर्फ पार्टी को बचाने के लिए किया जा रहा है। यासिर रेशी ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बयान आया था, बहुत से लोग जो पार्टी से निकले हैं 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त के बाद, तो वो वापस दरखास्त लेके हमारे दरबार में हाजिर हुए हैं। क्योंकि शायद लग रहा था कि उस सर्टिफिकेट के बाद इसलिए वो आए होंगे कि जन्नत उसी से नसीब होगा लोगों को। शायद ये कहीं गलतफहमी है कि दरखास्त लेके आए हैं कि वो पार्टी में वापस शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। मैं मैडम मोहतरमा महबूबा जी साहिबा को गुजारिश करता हूं मोहतबाना, हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे, हम खामोश थे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। हमने काम इकट्ठे किया है, हम साथ चले हैं, तो अच्छा नहीं लगता था बात करना। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं जरा वो नाम तो बताएं किसने एप्लीकेशन आपके दफ्तर में दी है। खुदारा अब कश्मीरियों को झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि जब हम कुर्सी पे होते हैं तब हमारी एक बात होती है, आवाज होती है, जब हम कुर्सी के नीचे होते हैं तब हमारी दूसरी आवाज होती है। मैं दिल्ली को सबसे ज्यादा अगर इसमें कसूरवार है जो इनको प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को उनको अपना बेनिफिट होता है। दिल्ली की मेन स्ट्रीम पार्टी को अपना बेनिफिट होता है ताकि वो फिर प्रोजेक्ट करते हैं इनको अपने लिए, उनको अपना में फायदा होता है, मारा जाता है मासूम कश्मीरी। क्यों, क्या लग रहा है कि हम ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी मसले कश्मीर के वारिस है? इसके वारिस तो अलग बैठे हैं, इसके वारिस वो बैठे जो 20-20 सालों से जेल में बैठे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। नाज़रीन, आपको याद ही होगा हालिया दिनों आपने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन पुलिस को 3 लोगों की बाजियाबी के हवाले से सरगर्मियां करते हुए देखा होगा और उसके बाद रामबन पुलिस को जब ये इत्तला मिली कि लखनऊ के रहने वाले 3 लोग इस शाहरा में फंस चुके हैं और उनके किसी रिश्तेदार ने बाज़ाब्ता तौर पर रामबन पुलिस को मुत्तला किया था कि उनके रिश्तेदारों से उनका राबिता मुनक़ता हो गया है और जो आखिरी बात उनकी हुई है या जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन हुई थी वो इस बात को लेकर हुई थी कि वो सड़क के अंदर किसी जगह पर फंस गए हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ कोई राबिता नहीं हुआ है। ये आज से 2-3 दिन पहले की स्टोरी थी, लेकिन इस स्टोरी में एकदम एक यू टर्न आया है क्योंकि ये लोग जम्मू कश्मीर में आज पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस उस वक्त दंग होकर रह गई है जब उन्हें लखनऊ पुलिस ने ये इत्तला दी है कि जिन अशखास को आप ढूंढ रहे हैं उनकी लाशें लखनऊ के अंदर ही अलग अलग जगहों पर पाई गई है। और इस स्टोरी ने उस वक्त भी फिर एक नया रूप लिया जब यह पता चला कि जिस शख्स ने जम्मू पुलिस को या रामबन पुलिस को मुत्तला किया था कि उनके वालिदैन और भाई इस सड़क के जद में आ गए हैं और कहीं पर उनका राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनकी बाजियाबी की जाए। माना जा रहा है कि उसी शख्स ने उन 3 लोगों की मर्डर किया है, यानी उन 3 लोगों का कत्ल किया है। इस सारी सूरत हाल में अब पुलिस का क्या मानना है, क्या पुलिस वाज़ेह तौर पर इस पर इत्तेफाक रख रही है, ये जानने के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं अली मोहम्मद जो हमें इस वाक़े के हवाले से तफसीलात बताएंगे। अली मोहम्मद, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर जहां रामबन पुलिस इन 3 लोगों को आज तक ढूंढ रही थी, वहीं पर अब ये इतलात मिल रही है कि लखनऊ पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका कत्ल हुआ है और उनका कत्ल जो है अपने ही बेटे ने किया है और उसके साथ साथ उसका भाई भी जो है उसको भी कत्ल किया गया है। क्या पुलिस ने इस हवाले से तस्दीक की है, क्योंकि इस हवाले से पुलिस को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देनी थी? देखिए, बिल्कुल जिस परिवार को श्रीनगर की पुलिस पिछले कई दिनों से तलाश रही थी जी, नेशनल हाईवे के किनारे नाले में
नदी में और साथ ही साथ होटलों में जी वो पुलिस लगातार दिन रात एक करके उस परिवार को ढूंढने में लगी थी, क्योंकि लखनऊ का एक परिवार ये बताया जा रहा था कि वो जम्मू घूमने के लिए गया था, उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में वो लापता हो गया है जी। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब राजधानी लखनऊ की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। जी। बता दें कि ये पूरा परिवार लखनऊ के विकास नगर का रहने वाला था और एक बेटा था इनका, जो छोटा बेटा था वो किसी तरीके से काम नहीं करता था और उसका ये कहना था कि परिवार उसे प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिसके बाद उसने अपने एक मित्र अनिल के साथ मिलकर पूरी हत्या की एक साजिश रची। अनिल वो शख्स है जो शमशान घाट पर शव को जलाने का काम करता है। अनिल को 1,80,000 रुपए दिए गए थे इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए और उसके बाद बेटे ने परिवार को जो रात का डिनर था उसमें नशीला पदार्थ मिलाया और उसके बाद घर में ही तीनों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसके बुजुर्ग माता पिता और उसका भाई मौजूद था जी। जिसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने 100 को गाड़ी में रखा और एक जो उसका भाई था उसको लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में झाड़ियों में फेंक दिया। जो उसके पिता थे उनको लखनऊ के ही ग्रामीण में थाना आता है जो माल के नाम से जाना जाता है, वहां पर फेंक दिया और जो उसके पिताजी थे बुजुर्ग उसको मलिहाबाद थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। जब 6 जनवरी को पुलिस को एक व्यक्ति की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और उसने उस शव को कब्जे में लिया, पूछताछ किया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। ठीक उसके 2 दिन बाद उनकी माता का एक शव मिला जो मलिहाबाद में मिला था, पुलिस ने उसको भी कब्जे में लिया, पूछताछ किया, लेकिन उसकी भी पहचान नहीं हो पाई। जो तीसरा शव उनके पिता का था वो माल से बरामद किया गया। लेकिन सबसे बड़ी इस पूरे हत्याकांड की जो हत्या की वारदात जैसे दिया गया था, तीनों के गला काटकर हत्या की गई थी, इसलिए पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी। लेकिन लखनऊ की जो ग्रामीण पुलिस है, जब श्रीनगर पुलिस ने उससे संपर्क किया तब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ और उसके अली क्या इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये वही लोग थे जिन्हें रामबन की पुलिस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रही थी? क्या इस बात की तस्दीक हुई है कि उसी बेटे ने उनका कत्ल किया है जिसने रामबन पुलिस को फोन किया था? क्या इसकी कोई तस्दीक पुलिस की जानिब से हुई है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई थी? 2 आरोपी पकड़े गए हैं जिनमें एक उनका बेटा है और एक उसका साथी अनिल है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया है कि उसका बेटा खुद अपने परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद वो बाई फ्लाइट श्रीनगर गया था, जहां पर अपने पिता के फोन से अपने परिवार वालों को उसने मैसेज किए और उसके बाद बेटे ने ही श्रीनगर के में एक थाने में गुमशुदगी के FIR दर्ज कराई और उसके बाद वो राजधानी लखनऊ लौट आया। लेकिन जब इस पूरे मामले में श्रीनगर पुलिस ने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया, उसके बाद लखनऊ पुलिस ने बेटे से कड़ाई से पूछताछ किया और मानव वैज्ञानिक तरीके से भी उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया है कि ये वही लोग हैं जिनकी श्रीनगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और राजधानी लखनऊ में उनकी हत्या की गई थी। हालांकि बेटे के साथ जो अनिल था उसको 1,80,000 रुपए दिए गए थे जब इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अली पूरी जानकारी देने के लिए। तो आप नाज़रीन जान सकते हैं कि इस जमाने में क्या कुछ हो रहा है कि अपने ही बेटे ने अपने वालिदैन का कत्ल किया है, न सिर्फ वालिदैन का बल्कि अपने भाई का भी कत्ल किया है और इस कत्ल के पीछे कोई फैमिली डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी का जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब पैंडेमिक भी चल रहा है, लोग परेशानी में मुब्तला है और यहाँ अपने ही बच्चे अपने वालिदैन का कत्ल करते हैं। जैसा कि अली ने कहा, पुलिस के हवाले से जो डिटेल्स शेयर की गई है कि मज़कूरा शख्स यानी मज़कूरा जो उनका बेटा था जिस पे कत्ल का इल्जाम है वो श्रीनगर आया हुआ था और यहाँ पर उन्होंने अपने वालिद के फोन से मैसेज की थी और उसके बाद यहाँ के मकामी पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई थी, ठीक इस चीज के लिए कि ये कोई साबित ना हो जाए कि उन्होंने ही इसका कत्ल किया है। लेकिन जब ऊपर वाले को ये जानना जरूर होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है, तो कोई लूपहोल जरूर रहता है। तो नाज़रीन खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यही इशारा मिल रहा है कि प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। तो इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे
फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।